welcome everybody. My name is Sneha Dhanetia, your English companion, and you are watching the show of English Grammar for Banking and SSC Exam 2020. Okay, and I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneha. And today I'm going to discuss, or I'm going to explain you the topic of tense, which is the pillar of English grammar, or I can say which is the foundation of English grammar. Students, आप सबको पता है कि टेंस के बिना आप एक सिंगल सेंटेंस भी फ्रेम नहीं कर सकते, तो सेंटेंस को समझना तो बहुत दूर की बात है. ओके, तो टेंस को आज हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, डिटेल में. एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प होने वाली है टेंस से. तो पता चलेगा कि किस तरह से एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंस. Okay, so keep watching and stay connected to the videos, and don't forget to watch the complete video. Okay, watch the video till the end, and at last, if you feel that video is worthful for your exams, so please don't forget to like, share and subscribe this video. Okay, so let's start our today's lecture. Okay, students, now come to the concept of tense. Okay, what does it mean? Tense is something which talks about state and action. Okay, state and action. Students, now we just try to learn what is state and what is action. Okay, now we have a sentence like right now I'm teaching you. Okay, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो here in this sentence I is subject. I am a doer. मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्या हुई? Doer. What action I'm going to perform, what action I'm performing, okay, that is teaching. Okay, तो teaching हमारी sentence का verb हुआ, और verb को ही हम क्या बोलते हैं? Action. Okay, and at last we have given object whom I am teaching. Okay, मैं teach किसको कर रही हूँ? तो आप लोगों को teach कर रही हूँ, that means students को teach कर रही हूँ. तो students क्या हुए? Object. Now we come to state. Action तो I think समझ में आ गया. जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक्शन है. लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेट करना ही क्या है? आपका एक्शन. बट स्टेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स. स्टेट को समझने की कोशिश कीजिएगा. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक टू सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज आई स्पीक इंग्लिश. ओके, और आई कैन से ही रीड्स अ बुक. ओके, and the another sentence we have is he is reading a book. Reading a book. Okay, now we have two sentences. Biggest difference is in the first sentence we have given reads, and in the second sentence we have given is reading. Okay, and the difference of these two verbs is state. Okay, I can say कि वह पुस्तक पढ़ता है, and another sentence is वह पुस्तक पढ़ रहा है. There is a biggest difference because in the first sentence it talks about regular or routine action, कि वो पुस्तक पढ़ता है. Okay, routine action है, वो regular basis पे पुस्तक पढ़ता है. Okay, but in the second sentence we have given he is reading a book. That means right now he is reading a book. Right now he is performing दिस एक्शन. ओके, मतलब कुछ समझ में आया कि जब आप बुक पढ़ते हो, ये तो रेगुलर बात हो गई कि आप रेगुलर डेज में बुक को रीड करते हो, आपको रीडिंग हैबिट है आपकी. बट सेकेंड सेंटेंस में कह रहा है कि अभी वो बुक पढ़ रहा है. तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये जो आपका एक्शन किस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है, किस अवस्था में आपका एक्शन अभी है, ओके, वो हमारा क्या होगा? स्टेट. आई थिंक समझ में आ गया डेफिनेशन. Tense denotes state and action with the help of time, क्योंकि अल्टीमेटली ये टाइम का डिफरेंस है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ चुका है, या पुस्तक सुबह से पढ़ रहा है. ओके, these are the differences of state. ओके, क्लियर. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस का जो हिंदी मीनिंग है स्टूडेंट्स, दैट इज काल. ओके, and now we have three types of tenses. The first one is present tense, past tense, and the last one is future tense. Okay, present tense is what? It's vartman kal. It talks about present habits or actions. Okay, past tense is what? It talks about past habits, past actions. Okay, that's called bhutkal. And the last one we have given about future actions is known as bhavishyakal. Okay, right students? Now we just come to the further classification of these three tenses. We further classify these three tenses into 4 stages, or I can say 4 states. Okay, अभी मैंने आपको states को define किया है आपके सामने. तो ये चारों जो हैं ये सभी क्या हैं? स्टेट्स हैं इन तीनों टेंसेज की. तीनों टेंसेज का बोला, दैट मीन्स
कि इसकी भी 4 स्टेजेस होंगी, 4 स्टेट्स होंगी, पास्ट की भी 4 स्टेट्स होंगी और फ्यूचर की भी 4 स्टेट्स होंगी, राइट. दैट मीन्स वी हैव गिवन ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स ऑफ tenses, okay, or I can say 12 states of tenses. Okay, now come to the first state or stage. What does it mean? What's the mean of indefinite? Okay, so indefinite का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, indefinite में हम ऐसे sentences को डालेंगे, ऐसे sentences को frame करेंगे where time is not fixed. Okay, where time is not fixed. Fine. देखो, अभी आपने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इन दीज 2 sentences वी डोंट हैव गिवन एनी हिंट और एनी hint about time. Okay, at what time you are playing, at what time you play cricket, at what time you read a book. Okay, there is no hint of time. कोई आपको टाइम का बारे में नहीं बताया गया है. तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में जाएंगी? इनडेफिनिट में जाएंगी, जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है. क्लियर? ओके, रूटीन एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, वो भी सारे किस में जाते हैं? इनडेफिनिट में. इधर यू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. फाइन. Now come to the next thing students, and the next state what you have is continuous tense. Okay, continuous tense के अंदर ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि वह पुस्तक पढ़ रहा है. दैट मीन्स राइट नाउ ही इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन. जब भी कोई एक्शन बोलते टाइम परफॉर्म किया जा रहा है, ओके, जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा है उसी टाइम पे, तो उसे हम किस में लेके जाएंगे? कॉन्टिन्यूस में. सो आप क्या लिख सकते हैं? व्हेन एक्शन is continue at the time of speaking. Okay, I hope ये क्लियर हो गया होगा सबको. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स परफेक्ट में. what it says. Okay, परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है देखते हैं. ओके, तो परफेक्ट में आप हमेशा उन एक्शंस को डालेंगे दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है उस कंप्लीटेड एक्शन को हम किस में लेके जाएंगे? परफेक्ट टेंसेस में. तो याद रखिएगा, जब भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीटेड एक्शंस हमेशा किस में जाएंगे? परफेक्ट टेंस में, राइट. वेयर एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, वेयर एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, right? And at last we have given perfect continuous tense. Students, perfect continuous को समझने की ज़रूरत है अच्छे से. जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ उस लाइन को आप सब लोग प्लीज़ ध्यान से देखना. ओके, and this one, now we have 3 parts. I just segmented this line in 3 parts. The first part is for past, second is for present, and the last part is for future. Okay, I just take an example students, like मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ. what does it mean? That means I started teaching in the past just 5 years back. Okay, तो मैंने 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया. फाइन, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक. कॉन्टिन्यूसली मैंने पढ़ाया. अभी नहीं पढ़ा रही हूँ. जस्ट इमेजिन कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ और मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो वो चीज़ किस में जाएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, राइट. बट अगर ये एक्शन कंटिन्यू है अभी भी प्रेजेंट में, लाइक अभी भी अगर मैं टीच कर रही हूँ, दैट मीन्स जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी भी कॉन्टिन्यूस है. ओके, तो ऐसे एक्शंस हमेशा किस में जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, एंड एट लास्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं. ओके, एग्रीकल्चर के लिए प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है. ओके, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं. तो क्या होता है इनके अंदर? ये शुरू होते हैं सालों पहले, लाइक इनको बनने में 20 ईयर्स लग जाते हैं, कभी कभी 10 ईयर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं. ओके, अगर कोई प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ है, लाइक 2015 में स्टार्ट हुआ था. ओके, जस्ट इमेजिन कि मेट्रो का बनना 2015 में स्टार्ट हुआ. जस्ट इमेजिन. ओके, दिस इज नॉट फैक्ट. और ये अब भी चल रहा है और अभी ये प्रोजेक्ट जो है आगे भी चलता रहेगा. जस्ट इमेजिन, ओके, कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2015 में, अभी भी चल ही रहा है और आगे तक चलेगा. आगे ये जाके 2025 में कंप्लीट होगा. जस्ट इमेजिन, ओके, कि ये इसका टारगेट है 10 ईयर्स का. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो पास्ट में स्टार्ट हुए अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, तो ऐसे केसेस को किस में लेके जाएंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. आई होप these 4 stages are clear to everyone. Okay, so I think I should move to the next one. चलिए,
अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जो हमारा फर्स्ट टेंस हम लेके चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्टेज हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वन मोर थिंग आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी, जितने भी प्रेजेंट के रूटीन एक्शंस हैं, प्रेजेंट रूटीन एक्शंस, ओके, हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें, इसके यूजेस हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स कम टू स्ट्रक्चर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस किस तरह से हम जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कम टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई जस्ट टेल यू वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, वो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस कौन से हैं, लाइक पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव आप जानते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेकेंड वन इज नेगेटिव, द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आप सबको पता है इतना तो, ठीक है। चलो इनके बारे में अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब सेंटेंस को जब आप फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स, तो यू जस्ट नीड 3 थिंग्स। ओके, लास्ट वन इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है, याद रखें हमेशा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी सब्जेक्ट इज व्हाट, अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, ओके, या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ पे बात करने वाला या फिर टीच करने वाला कौन है आपको, मैम। तो मैम क्या हुई वहाँ पे, डूअर। डूअर दैट मीन्स जो काम को कर रहा है, करता। क्लियर है सबको। ओके, तो सब्जेक्ट इज व्हाट, सब्जेक्ट इज करता, और यू कैन से डूअर और यू कैन से परफॉर्मर। ओके, जो परफॉर्म कर रहा है टास्क को। ओके, अब मैं टास्क क्या परफॉर्म कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। तो टीचिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब। ये टीचिंग का एक्शन जो है दैट्स कॉल्ड वर्ब। एट लास्ट वी हैव गिवन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज व्हाट एट विच दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड, लाइक ये टीचिंग का एक्शन परफॉर्म किस पे किया जा रहा है, स्टूडेंट्स पे। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या हुए, ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या चीज है, तो इसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर फॉर फ्रेमिंग अ सेंटेंस। ओके, तो हम किस तरह से प्रेजेंट डेफिनेट में सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, वो स्ट्रक्चर अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हूँ। चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लेस सब्जेक्ट, then after first form of verb or first form of verb plus s or es. Either you need to place first form or you need to place first form plus s or es, and at last we need to place object. Okay, अब differentiate कैसे करेंगे कि मैम फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ लगाएं और फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es कहाँ लगाएं। चलेगा स्टूडेंट्स, मैं एक बार सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर देती हूँ। ओके, दिस टेबल इज फॉर सब्जेक्ट्स, कि किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। इन दिस केस वी हैव कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, राइट। नाउ वी हैव 2 कैटेगरीज फॉर सब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट कैटेगरी वी हैव गिवन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ओके, प्लूरल नाउन्स आप लिख सकते हो। एंड इन द सेकेंड कैटेगरी वी हैव गिवन ही, she, it and singular noun. Okay, I hope these 2 categories are clear to you all. Okay, आप सबको समझ में आ गई है कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। आपके पास इस तरह से 2 ही तरह की कैटेगरी में सब्जेक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी 1 में हमने रखा प्लूरल सब्जेक्ट्स को। ओके, लाइक वी, यू, दे। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब वो। ओके, तो समझ में आ गया है। प्लूरल में हो सकता है लाइक स्टूडेंट्स, टीचर्स। ओके, आप क्या बोल सकते हो, सिटीज, नेशंस, ऑल दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, so all those plural subjects come under category 1 and all the singular subjects come under category 2. तो ध्यान रहेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आइएगा, when subject is plural और I को भी आप इसी कैटेगरी में डालोगे। तो जब भी आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल हो या फिर I आपका सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तो प्रेजेंट डेफिनेट में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। I hope this is clear to everyone. Okay, now come to sentence. They is a plural subject and they sing a song. So in this sentence we just place first form of verb, not V1 plus S or ES. This would be wrong for the sentence. Okay, तो V1 यूज हुआ है तो बिल्कुल सही है। कैटेगरी 1 में हमने यही डिस्कस किया था कि प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर हैं तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म को प्लेस करेंगे, राइट। In the second sentence we have given I sing a song. The same is here. Apart from plural subject, if you have I as a subject, okay, अगर I को as subject आप प्लेस कर रहे हैं
तो भी आप फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करोगे, नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। क्लियर है सबको? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी आई थिंक समझ में आ गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप लोग V1 प्लस एस और ई एस को यूज़ करोगे, राइट? इससे पहले आपने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया था, अब आप V1 प्लस एस और ई एस को यूज़ करोगे। सो सब्जेक्ट, देन आफ्टर V1 प्लस एस और ई एस, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। बट हियर कंडीशन इज योर सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट जो है वो एक वचन होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया है? सिंगुलर में जो एक वचन हो, जो एक को डिनोट करे, लाइक वो लड़की, वो लड़का, या फिर ये लड़की, या फिर ये वस्तु, ओके, या फिर जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो सब भी सिंगुलर होते हैं। समझ में आ गया इतना? सब्जेक्ट्स पे आइएगा प्लीज। लाइक ही तो सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो सिंग जो है उसमें हमने क्या प्लेस किया है? सिंग्स प्लेस किया है, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इट। हेल्प में आपने क्या प्लेस किया? एस। इट हेल्प्स मी अ लॉट। ओके, अब कहाँ एस और ई एस लगाते हैं और कहाँ आपने एस लगाना है, कहाँ आपने ई एस लगाना है, इसके बारे में हमने नाउन्स में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप नाउन के चैप्टर में जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइट? चलिएगा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने अब स्टूडेंट्स देखिएगा, नाउन के बारे में यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा अगर सिंगुलर नाउन हुआ, लाइक राहुल रीड अ बुक, आप नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? राहुल रीड्स अ बुक। Okay, this would be the correct sentence for second structure. Now come to the third one. Students, this is the most important structure for present definite tense, and most of the teachers, most of the faculties don't teach you this structure. Okay, don't tell you about this structure. Okay, I don't know why. Okay, let's come to the structure. First of all, we need to place subject, then after either is, am, are, has, have, or any of these verbs, right? And at last we need to place complement. Complement here is act as an adjective which talks about subject. Okay, ऐसी चीज़ जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए। ओके, अब देखिएगा, मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार आपसे डिस्कस किया है कि जब भी आपके वर्ब के साथ मेन वर्ब गिवन ना हो तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस में जाएगा। ओके, अगर वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स को डिनोट कर रहा है तो पास्ट के सिंपल में जाएगा। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे तो प्रेजेंट की सिंपल टेंस में डाल दीजिएगा, दैट मीन्स इंडेफिनिट में। ओके, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, आई एम बिजी टुडे। ओके, आई एम बिजी टुडे, दैट मीन्स वी डोंट हैव गिवन एनी एक्शन और एनी मेन वर्ब और मुख्य क्रिया विद सब्जेक्ट। ओके, हमें नहीं दिया, एम तो दिया है, एम डिनोट कर रहा है प्रेजेंट को कि हाँ भाई मैं बिजी हूँ आज। ओके, बट एक्ट तो नहीं कर रहा ना, वो कुछ उसने बताया नहीं कि वो काम क्या कर रहा है। एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर सिंपल टेंसेस और इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सेम इज हेयर इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ बंगलो। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हैव जब भी उन्हें दिखता है हैज़ हैव, तो यूजुअली स्टूडेंट्स उसे परफेक्ट टेंस समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक आपके पास हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक ये वाला स्ट्रक्चर केवल किस में जाएगा? सिंपल सेंटेंस में। ओके, सिंपल टेंस में। सिंपल मतलब कि आपका प्रेजेंट सिंपल में, राइट? नेक्स्ट, एट लास्ट वी हैव गिवन शी हैज़ मच वर्क टू डू। तो अंडरस्टूड है, शी के साथ हैज़ आता है, आई के साथ हैव आता है, प्लूरल्स के साथ हैव आता है और सिंगुलर्स के साथ हैज़ आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कशन भी किया है। चलो चलते हैं, कम टू यूसेज ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट प्रायर टू दिस आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज वन मोर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, ओके, एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आई होप समझ जाएंगे, अदरवाइज ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव में सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। नेगेटिव में आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क वाले और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी होगा और नेगेटिव भी होंगे। तो यहाँ पे आप याद रखें, जब भी आप प्रेजेंट डेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट डेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस ईदर डू और डज, राइट? समझ में आ गया इतना? या तो आप डू यूज़ करेंगे या डज। देन आफ्टर यू नीड टू प्लेस नॉट बिकॉज योर सेंटेंस इज negative, okay, but and after that
you need to place V1 and then after object. ओके क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म तो आपको यूज़ करना है, ये तो आपको अंडरस्टूड है. ओके बट नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू या डज में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा, नोट को रखना पड़ेगा. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, प्लूरल्स जो केसेस हैं, प्लूरल्स के साथ आप डू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर्स के साथ आप डज का यूज़ करेंगे. होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. लाइक इफ़ आई एम सेइंग मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे सेंटेंस? अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट लिव इन दिल्ली. ओके अगर आप कहते हैं मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो आप क्या, या फिर वो पुस्तक नहीं पढ़ता है तो ही डजंट रीड अ बुक. मतलब समझ में आया? सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज यूज़ किया, प्लूरल या आई हो तो आप डू यूज़ करेंगे. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. नाउ कम टू यूसेज. ओके इन द फर्स्ट केस I have already told you present tense we use when we talk about present habits or present actions. प्रेजेंट की कार्य और प्रेजेंट की आदतों को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, और आई कैन से हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. फाइन, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई लिव इन दिल्ली, सेंटेंस इज करेक्ट, राइट? आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, कैटेगरी फर्स्ट का है. ओके आई के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि प्लूरल्स के साथ करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो क्या होना चाहिए? ही वर्क्स इन दिस ऑफिस. तो प्रेजेंट की एक्शंस हैं ये. ओके एंड द नेक्स्ट वन वी हैव गिवन शी वॉचेज एक्शन मूवीज. ओके वो कैसे मूवीज़ देखती है? शी वॉचेज एक्शन मूवीज़, वो एक्शन मूवीज़ देखती है. तो शी के साथ आपको पता है एस या ई एस में से कुछ लगता है, तो ये दोनों में ही करेक्ट है, एस या ई एस प्लेस्ड है. और आई के साथ कभी भी आप एस या ई एस प्लेस नहीं करोगे, याद रखना. ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं. नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूसेज दैट इज एनी यूनिवर्सल ट्रूथ. इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ वी नीड टू प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके चलिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स सार्वभौमिक सत्य. सार्वभौमिक जो भी है सत्य. ओके जिसको सब मानते हैं, जो सत्य है. लाइक सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है. ओके सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट मीन्स दिस इज अ फैक्ट. हम जानते हैं कि सन. अब आप कहेंगे कि अर्थ जो है उसका शेप अंडाकार है, दैट मीन्स एलिप्टिकल शेप है. एलिप्टिकल नहीं, बेसिकली जियोड शेप है. तो आप बिल्कुल फैक्ट है, ये जियोड शेप है अर्थ का. तो व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, जो फैक्ट्स हैं, तो आप ऐसे केसेस को प्रेजेंट डेफिनेट में लेके जाएंगे. सो कम टू एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड. देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है इस केस में ये हमारे सेंटेंस का थर्ड स्ट्रक्चर है. याद है, इसमें हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो ये थर्ड स्ट्रक्चर है. द अर्थ इज राउंड फैक्ट है, दैट मीन्स सेंटेंस इज करेक्ट. In the next sentence we have given the earth revolves round the sun. Okay, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है. यहाँ पे अराउंड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, रीज़न अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं. तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो ये हमारा सन हुआ और ये हमारी अर्थ हुई. ओके तो ये अराउंड क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ये जो द रीज़न इज दिस पाथ इज एलिप्टिकल पाथ, अंडाकार पाथ होता है ये. ओके और राउंड हम यूज़ करते हैं बिल्कुल सर्कुलर के लिए, और एक्सट्रीमली सॉरी ये सर्कुलर नहीं है. ओके सो ये हमारा क्या है? एलिप्टिकल है, इसलिए हम अराउंड यूज़ करेंगे. फाइन, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. थर्ड यूसेज देखते हैं. थर्ड यूसेज है रिपीटेड, रेगुलर और रूटीन. अगर मैं रिपीटेड एक्शंस की बात करूँ तो आपके एग्जाम्स हर 4 मंथ्स में होते हैं. ओके सेम इज़ हेयर. अगर हम रूटीन एक्शंस की बात करें तो हम डेली स्कूल जाते हैं, हम डेली सुबह उठते हैं, अपने टीथ ब्रश करते हैं, हम वॉक पे जाते हैं. तो ऑल दीज आर रूटीन एक्शंस. ओके एंड एवरी रूटीन एक्शंस कम्स अंडर present indefinite tense. Okay, now come to examples. Shweta goes for a walk every morning. देखिएगा ये बहुत बड़ा हिंट दिया है सेंटेंस में, every morning लिख दिया है. That means your sentence is in present tense. वैसे ही समझ में आ रहा है. Okay, तो हर सुबह वो किसके लिए जाती है? वॉक के लिए. तो उसकी हैबिट के बारे में, उसके रूटीन एक्शन के बारे में बता रहे हैं. ओके और श्वेता सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो आप उसके साथ ES यूज़ करेंगे, आपको पता ही है. आई का यूज़ है तो आप V1 यूज़ करेंगे, ना कि V1 प्लस SAIS. तो आई गेट अप
फिर से हमारा क्या है, रूटीन एक्शन है, रेगुलर एक्शन. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह डेली जल्दी उठता हूँ मॉर्निंग में. नेक्स्ट वी हैव 4 फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस. तो स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस जो होते हैं वो भी आप किस में डालते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में. इसका एक और केस है जो हम कॉन्टिन्यूस में डिस्कस करेंगे, तो उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो इनमें डिफरेंस आपको बताया जाएगा, राइट. शी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट मंथ. ओके, शी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट मंथ. वो नेक्स्ट मंथ जो है मुंबई जाएगी. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, है तो ये फ्यूचर का एक्शन बट प्लान्ड है ना कि नेक्स्ट मंथ जाएगी, सो दैट वी कैन प्लेस दिस एक्शन इन present indefinite tense. Okay, next we have Mr. Sharma retires on 31st March. कि मिस्टर शर्मा जो है वो 31 मार्च को क्या होंगे, रिटायर होंगे. तो ये भी प्लान्ड एक्शन है और प्लान्ड एक्शन को हम किस में डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ओके, मिस्टर शर्मा सिंगुलर था, प्रॉपर नाउन था, इसलिए हमने रिटायर में एस लगा दिया. सेम शी जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट, इसलिए ई एस का यूज़ किया. तो एस और ई एस आप तब यूज़ करते हैं व्हेनेवर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. गॉट इट. चले आगे. Okay, when two actions, next usage है students, when two actions of future are discussed. Okay, जब दो फ्यूचर के एक्शंस एक ही सेंटेंस में बताए जाएं तो स्टूडेंट्स उस सेंटेंस में आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे. बट दोनों में से कौन से वाले सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम when two actions of future are discussed or given, at that time you have given two sentences. Okay, दो sentences जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, तो आप किस में यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट. ये तो एक इशू हो गया ना कि मैम सिंपल प्रेजेंट करना कौन से वाले में है. एक में तो हमारा सिंपल फ्यूचर यूज़ होगा, दैट्स फाइन बिकॉज सेंटेंस इज फ्यूचर. ओके, बट दूसरे वाला जो सेंटेंस है उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है, ये तो हमें समझ में आ गया. बट दोनों में से किस में कौन सा यूज़ करेंगे. ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसमें. देखिएगा कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस, as soon as long as, in case, provided, before. ओके, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते. ओके, ध्यान रखिएगा, शर्त ये है कि. बाकी आई थिंक क्लियर है सबको. तो जब भी किसी सेंटेंस की बिगनिंग में ये वर्ड्स आएँ वो सेंटेंस हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में होगा एंड द अनदर वन वुड बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस. गॉट इट. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल. एज सून एज आई विल रीच देयर, आई विल मीट यू. ओके, देखिएगा दो सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. ओके, अब एज सून एज कौन से वाले पार्ट में है, इसमें ना, तो इसी सेंटेंस का किस में होना मैंडेटरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. चलो देखते हैं क्या एरर है इसमें. एज सून एज आई विल रीच देयर, तो होना किस में चाहिए. अभी अभी बोला है कि अगर इनवर्ड से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट रखेंगे. तो आई के साथ क्या नहीं होना चाहिए, विल. नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट. एज सून एज आई रीच देयर आई विल मीट यू. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैं तुमसे मिलूंगा. करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू विल नॉट सक्सीड, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी या फिर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे. कब, जब तक, अनलेस मीन्स जब तक, यू वर्क्स हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते. ओके, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखें, इस सेंटेंस में आपको पता है कि जो यू है उसमें प्रेजेंट डेफिनेट तो है, बिकॉज इन केस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट वी कैन यूज एस और एस with verb. Okay, but the problem is you is a subject of category 1. Okay, where we talk about plural words. Okay, plural subjects. और प्लूरल सब्जेक्ट्स में कभी भी एस का यूज़ या एस का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं. फाइन, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट यूसेज पे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट यूज हमारा है कि यूज सिंपल प्रेजेंट इफ सेंटेंस हैज़ गिवन दीज वर्ड्स. अगर सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स दिए हैं सो most probably you need your sentence would be in simple present. Okay, or we can say present definite. He usually going to movie. usually वो मूवी जाती है, कहते हैं ना अक्सर वो मूवी जाती है. तो ये तो क्या हो गया, गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही यूजुअली. ही है तो क्या करेंगे, गोज करेंगे. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. शीना ऑफन कम टू मीट मी. शीना मेरे पास मिलने आती रहती है. ओके, ऑफन कम टू मीट मी. तो शीना सिंगुलर है तो शीना के साथ V1 नहीं, V1 प्लस एस और ES होना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट वी कम टू सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस. ओके, I went to temple every day. Okay students, we have just discussed if you have given every day, always, usually, okay, generally,
every day, every month, every week. These kind of sentence represents present indefinite tense, and if your sentence is present indefinite, so there is no need to place second form of verb. When it is second form हमें नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि I के साथ V1 यूज होता है, और V1 होगा क्या, I go to temple every day. Now come to the next sentence. Always ने हमें बता दिया है कि this sentence is in simple present tense. Okay, so she is a singular subject, or in case of singular subjects we need to place s or es with verb. Okay, so watches हो जाएगा, ना कि watch. So she always watches all episodes of Big Boss, कि वो Big Boss के सारे episodes को देखती है, right? अच्छा, आपको पता है ना, sh, sh, okay, x, sh, ch, x, इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो वो अब में es लगता है, राइट? ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल. अब बेटा ये चीज़ ध्यान से देखो, इस यूसेज को हमने नहीं लिखा है. जब भी आप बात करते हैं रेडियो और टीवी और स्पोर्ट्स जो भी है, कमेंट्री की, ओके, तो जब भी कमेंट्री की बात की जाए तो कमेंट्री हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में होती है, चाहे वो हो चुकी है परफॉर्म, नो डाउट. तो कमेंट्री जो है रेडियो टीवी स्पोर्ट्स कमेंट्री, या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आई कैन से न्यूज़पेपर हेडलाइंस एज वेल, न्यूज़ जस्ट वेट अ मिनट बच्चों, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, राइट? तो ये सभी जो है ये हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में होंगे. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके लिए भी और इनके लिए भी. फाइन, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. दैट मीन्स योर सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज तेंदुलकर इज सिंगुलर. इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू नीड टू प्लेस एस और एस इन द वर्ब. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वन. ओके, प्रेसिडेंट लीव्स फॉर रशिया नेक्स्ट मंथ. ओके, अंडरस्टूड है बच्चों कि नेक्स्ट मंथ डिसाइडेड है कि वो रशिया जाएंगे, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज काउ वॉज अ होली एनिमल. तो काउ इज अ होली एनिमल और काउ वॉज अ होली एनिमल. अब भी तो है ना गाय, ये सार्वभौमिक सत्य है, और फैक्ट्स जो है वो किस में होते हैं, फैक्ट्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. तो काउ जो है वो एक पवित्र पशु है. ओके, होली एनिमल है. नेक्स्ट वन इज द शॉपिंग मॉल ओपन्स एट 10 AM. देखो ये रिपीटेड, ये रूटीन एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन भी बोल सकते हैं. ये शॉपिंग जो मॉल्स हैं प्रेजेंट का एक्शन हो गया, डेली खुलता है यार. ओके, तो कितने बजे खुलता है, 10 बजे, तो रेगुलर एक्शन हो गया, और रेगुलर एक्शन है तो ओपन्स बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज शॉपिंग मॉल इज सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? शॉपिंग मॉल पूरा सब्जेक्ट हो गया, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? Next one we have, if the government will become strict, corruption will surely finish. Okay, lots of my students have already aware of this sentence. Okay, I already well known to this sentence. चलिए देखते हैं. If the government, I already discussed with you students, if whenever you have given a sentence if, okay, whenever your sentence is sentence starts with if, अगर कोई sentence if से, when से, until, unless इनसे started है, तो समझ जाइएगा उस सेंटेंस में हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा तो विल को हटाना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड इफ़ द गवर्नमेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो देयर शुड बी बिकम्स. ओके, समझ में आ गया है. और अनदर वन इज इन सिंपल फ्यूचर, वो ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में है, देखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे this is, I think this is enough to you all. So please don't forget to share, subscribe and like our videos. Okay, and please don't forget to press the bell button, and I'm always here for you for your doubt session and for everything about English. Okay, so don't forget to hesitate in asking your doubts. You can ask your doubts through comment section, as well as you can follow me on Instagram, you can follow me on Facebook, you can follow me on Telegram channel with the same name, Learn English with Sneh. Okay, and thank you very much to all of you. Thanks for watching this video, and thanks for having the patience for listening me.